So it was not a professional, but yeah, it was a kind of hobby. But eventually, I got selected in the team. Acha. So can you tell more about the badminton journey? Like you mentioned that in 6th standard it started. So how did you take on from that? Starting, see, I started playing badminton a well ago, like third or fourth standard. But later, with 3 years of gap, it came to a professional Level. view, or you can say a vision. So it was just a normal cement court, but I used to see my seniors. There were some players who were already into district players and all. So they were playing with good shoes, racket, and so I had a group. So I still remember that there were like five of us. So we used to go every day, and later 3 or 4 decided to let's get some nice good equipments, and we started playing. And there was this sir, like a name called Somnath. So he was the guy main behind my shaping my career. So he started off with this coaching system in our school. So that sir eventually had a good rapport with everyone, and we had a every day sessions, like 1 hour sessions in school, after school, or like maybe in the evening around 6 to 7, in that way. And from there, I was just playing. So I came from a place called Roha, so it was not that great, and we didn't had any, what you can say, a coaching thing over here. So watching a YouTube video or how others play, basically. So from that I learned, and I participated in around 7 to 8 district competitions, but I didn't succeed at the very first. It was my ninth competition when I won it. So that time there was this coach named Yogesh Patil who recognized me as a talent and called me to his academy, and that was around in 9th or 10th standard. And then after that, the life started professionally as a badminton player. I started representing my district for like 2-3 years. Then I started representing my state at nationals. So I wasn't in a team actually, but I played individually at national level. So there's this criteria, so you can represent yourself at a national. So at district, my highest rank was like I was number 2 seeded when I was 17 years. When I was number 2 seeded when I was 19 or below 19. In open criteria, I was number 3 seeded. And after that, the life evolved as a professional badminton player. Then I completed my refereeing thing, so I became an umpire. So after that, I started coaching kids, and it was my motive to give facilities or the coaching techniques to the kids who in at my hometown, which I didn't get. So it was a bit of a experience sharing program for me. So that's a great thing. मतलब बहुत तगड़ा जर्नी था आपका. So अभी going on, I want to ask you that अभी हम लोग का कैसे स्कूल में, अगेन मैं क्रिकेट का एग्जांपल दे रहा हूँ. क्रिकेट में कैसे होता है कि सिलेक्शंस होता है स्कूल में, देन यू गेट सिलेक्टेड इन द स्कूल टीम, देन यू रिप्रेजेंट अ स्कूल इन डीएसओ, फिर डीएसओ से यू गो ऑन टू रिप्रेजेंट योर स्टेट. तो बैडमिंटन में कैसा रहता है? सो वहाँ पे भी सेम ही होता है. मतलब आई गेस सब स्पोर्ट्स के साथ ये सेम क्राइटेरिया होगा, आई होप. सो हमारे यहाँ पे ऐसा था कि स्कूल में देयर वाज दिस क्राइटेरिया कि आपको एक एज ग्रुप है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, एंड फिर सिलेक्शंस होते थे लाइक स्कूल के अंदर टू फॉर्म अ टीम. तो वैसा सेम क्राइटेरिया था यहाँ पे भी बैडमिंटन के लिए. लाइक हमारे स्कूल में, सो you have to select 5 of them, so like girls and boys team, 5 का टीम रहता था. एंड वहाँ से फिर स्कूल डिसाइड करता था कि जो भी सिलेक्ट होता है, सो उनको डीएसओ जो मैचेस होते हैं, सो जो भी सेंटर है तो वहाँ पे लेके जाने का. सो इट वाज सेम ओनली, बट हाँ थोड़ा कंपटीशन रहता था, क्योंकि ऐसा होता था कि ऐसा ना हो जाए कि जो जिसके साथ रोज प्रैक्टिस करता वो सिलेक्ट हो जाए और मैं सिलेक्ट ना हो जाए. तो वो एक दिमाग में रहता था. बट ऐसा कभी लगा नहीं कि मैं कभी सिलेक्ट हुआ नहीं हूँ, क्योंकि 1-2 बार ऐसा क्राइटेरिया था या फिर एक ऐसा मोमेंट थे जहाँ पे आई वाज ऑन लूजिंग साइड. तो मैं हार गया वो मैच, एंड बहुत बुरा लग रहा था कि अभी मैं सिलेक्ट नहीं हो जाऊँगा ऐसे वगैरह, या फिर स्कूल या सिलेक्शन कमेटी अभी क्या कहेगी कि रोज़ प्रैक्टिस करता नहीं. बट उस स्कूल ने कैलिबर देखा मेरे अंदर कि हम लोग इसको प्लेइंग में नहीं बट एज ए एक्स्ट्रा प्लेयर कैरी कर सकते हैं.
जैसे 5 का टीम होता है तो उसमें 3 लोग खेलने वाले लाइक द मेन प्लेयर्स होते हैं और 2 एक्स्ट्रा होते हैं, तो स्कूल ने मुझे एक्स्ट्रा में कंसिडर किया था। और फिर बाकी तो सेम लाइक डीएसओ, फिर उसके बाद आप डीएसओ से अगर टीम जीतती है तो पूरी टीम जोनल्स के लिए जाएगी, या फिर आप सेमीफाइनलिस्ट या फिर फाइनलिस्ट हो तो, या फिर क्वार्टर फाइनलिस्ट आई गेस नाउअडेज, तो आप इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करके सिलेक्शन में पार्ट कर सकते हो, एंड इंडिविजुअली यू कैन रिप्रेजेंट एट जोनल लेवल। तो वैसा है। और फिर जोनल्स में मतलब वो यू कैन कम्पीट इन लाइक वेस्ट जोन होता है, ईस्ट जोन है, जब मतलब जो ईस्ट साइड में रहते हैं तो फॉर देम इट्स ईस्ट जोन, हमारे यहाँ पे वेस्ट जोन होता है, सो वैसे होता है। तो उसके पहले यू हैव टू रिप्रेजेंट योर डिस्ट्रिक्ट एज वेल, तो उसमें ऐसा रहता है लाइक जैसे मैं रायगढ़ से खेलता था तो उसमें आते थे लाइक ग्रेटर मुंबई, मतलब जो फोर्ट साइड में फिर साउथ बॉम्बे में रहते हैं, फिर मुंबई सबअब था जो मुलुंड या फिर घाटकोपर कोटला वो साइड, इवन मीरा भाईंदर वगैरह, वो मीरा भाईंदर अगर ठाणे में है, सो अंधेरी वो सब थे। फिर उसके बाद और 2-3 डिस्ट्रिक्ट रहते थे उसके बीच में, जैसे मुंबई में ही सब डिस्ट्रिक्ट, पालघर एक है, ठाणे है, रायगढ़, मुंबई सबर्ब्स, ग्रेटर मुंबई, ऐसे सब डिस्ट्रिक्ट कॉम्पीट करते हैं। उसके बाद अगर उनमें पूरा टीम जीतता है सेम क्राइटेरिया तो टीम गोज टू द नेक्स्ट लेवल, या फिर इंडिविजुअली जो खेल रहा है तो इंडिविजुअल गोज टू द नेक्स्ट लेवल। सो क्राइटेरिया इज ऑलमोस्ट सेम। फिर तुम्हारे नेशनल्स होते हैं जिसको हम SGFI बोलते हैं, सो उनके अंडर फिर तुम्हें नेशनल्स खेलना है। तो फिर मतलब हर स्पोर्ट के तरह ये वो दोनों डिवाइडेड, आई मीन एक स्कूल के तरफ से भी जाता है और एक फेडरेशन की तरफ से भी, ऐसे भी है? हाँ, मतलब ऐसा ही होता है कि आप इंडिविजुअली, बहुत बच्चे इंडिविजुअल खेलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हर स्कूल के पास इतनी अच्छी टीम नहीं होती है, या फिर कुछ सालों के लिए टीम नहीं होती, मे बी उसके बाद हो सकती है, तो तब तक वो इंडिविजुअल जो खेल रहा है वो खुद को रिप्रेजेंट करता है फॉर दैट केस। जैसे मैंने एक 11th-12th में किया था, आई वॉज अ पार्ट ऑफ DY पाटिल जूनियर कॉलेज, तो वहाँ पे मेरे पास टीम नहीं थी, मैं अकेला था। सेकेंड ईयर मतलब 12th की बात है, मैंने 2 फुटबॉलर्स को उठाया था, उनको बोला था खाली की सर्विस करो और बाजू हटना, मैं बाकी देख लूंगा। डबल्स में? हाँ, वो टीम गेम होता है लाइक, तो सिंगल्स डबल सिंगल्स खेलना है, तो मुझे ऐसा कंपल्शन था कि मैं सिंगल्स जीतना ही है मुझे पहला, फिर डबल्स जीतना है, ताकि 2-0 हो जाए, फिर मैं थर्ड खेलूं नहीं खेलूं, कंप्लीट डिफरेंट पार्ट है। तो मैंने एक 2 फुटबॉल सर से रिक्वेस्ट की कि मैं 2 प्लेयर चाहिए, तो सर ने आई गेस हमारा फादर एग्नल्स पे फुटबॉल का टूर्नामेंट भी साइड में चल रहा था, एंड मेरा मैच वाशी में था जो नई मुंबई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे। सर ने 2 फुटबॉलर्स को लेके आए, उनको बोला कि बस तुम सर्विस करना, खड़े रहना, वो संभालेगा। तो उससे मैं सेमीफाइनल्स तक गया था नई मुंबई में, और फिर वहाँ से ऑब्वियसली मैं हारा तो आई डिडंट गेट अ प्लेस इन अ टीम। तो फिर मुझे जो वहाँ पे जो रेफरीज थे या फिर जो चीफ रेफरी थे, उन्होंने बोला कि तू इंडिविजुअल्स के लिए अपियर कर, कि अगर तू यहाँ पे आ सकता है सेमीफाइनल्स तो इंडिविजुअल जीत सकता है। तो इवेंचुअली मैं जीत गया इंडिविजुअल्स, और फिर मैं नवी मुंबई को रिप्रेजेंट कर रहा था एट जोनल्स। वो तो जैसे स्पर्श ने कहा, बाकी स्पोर्ट्स का पता नहीं है, बट ऑलमोस्ट सब स्पोर्ट्स को ऐसे ही क्राइटेरिया रहता है। 2 अलग अलग बॉडीज मतलब। हाँ, तो आपका भी मैं इंस्पिरेशन पूछना चाहूँगा, आई मीन आपने क्या देख के शुरू किया, कि आपके मन से आया, या फिर आप कोई था आपका ऐसा कि इंस्पिरेशन जिसको देख के आपने फिर शुरू किया खेलना? नहीं, ऐसा कोई इंस्पिरेशन पहले नहीं था, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने जब ये स्पोर्ट खेलना चालू किया ऐसा बैडमिंटन, तो वो सब ऐसे ही था, वो जो रात में खेलते हैं ना खाने के बाद, वो बिल्डिंग वाले आए चलो खेलते हैं, एग्जैक्टली सब 2-3 रैकेट लेके नीचे गए खेलने के लिए, सो वैसे ही सीन था। बट जब स्कूल में स्टार्ट हुआ तो उधर भी मतलब दोस्त लोग जा रहे हैं तो ज्वाइन करते हैं, कंपनी देते हैं उन्हें, तो वैसा था। बट हाँ, लाइक जैसे मैं थोड़ा गेम में इवॉल्व हुआ या फिर गेम में थोड़ा और डीप गया, तो मैं जैसे यूट्यूब वीडियो देखने लगा, तो मलेशिया का एक प्लेयर है ली चोंग वे, सो जो वर्ल्ड नंबर 10 ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, उसको कंसिडर लेजेंड कंसिडर किया जाता है उनको, सो वो मेरे इंस्पिरेशन थे। और बाकी प्लेयर्स भी है कि मैं उनको जो फॉलो करता था जब मैं पूरे करियर में, जैसे चाइनीज टाइपे की ताइजुइंग है, वो है। फिर इंडिया में अभी रिसेंटली तो आई एम फॉलोइंग सात्विक एंड चिराग, मतलब क्योंकि मैं खुद अभी सिंगल्स छोड़ दिया ड्यू टू इंजरी, तो मैं डबल्स खेलता हूँ, और उनका गेम बहुत अच्छा है, लाइक टू बी वेरी एग्रेसिव है बहुत, कि
बीइंग अ वर्ल्ड नंबर 1 इज नॉट इजी टास्क। Right. लाइक अपने स्कूल में जितना भी अपना हमारे लिए एक ओलंपिक मेडल ही होता है, हाँ हाँ तो सोचो वर्ल्ड नंबर 1। तो ऐसा कोई आइडल नहीं था वो टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया, फिर मैं किसी को देखता नहीं था, एक कैजुअल स्पोर्ट्स की तरह वो स्टार्ट हुआ और फिर कन्वर्ट हुआ इनटू हॉबी, हॉबी से फिर प्रोफेशनलिज्म में, ऐसा सब आ गया। बढ़िया, काफी वेदांत जोरदार being our journey। old friend, मैं तो ऐसे सोच रहा था कि लड़की लोग खेलते से देख के चालू किया उसने। नहीं, और मतलब- हमारे स्कूल में ऐसे लड़के लोग खेलते भी नहीं थे, हाँ, तो लड़के लोग को देख के नहीं लड़कियां नहीं थी एक्चुअली ना। बैडमिंटन में हमारे स्कूल में बहुत सारे लड़के ही थे, लड़कियां नहीं थे। आई रिमेम्बर 1-2 ही लड़कियां आती थी, बट आई डोंट नो वो उन्होंने आगे कंटिन्यू नहीं किया जो भी है। वेदांत के ये बहुत पहले ऐसा एक स्टीरियोटाइप था कि बैडमिंटन फीमेल सिर्फ स्पोर्ट है, लड़कियां ऐसा खेलते हैं, बहुत बराबर। 1-2-3 मतलब 20 सालों जब पहले। हाँ, स्कूल ये- में थे ना तब ये चल रहा था सब कुछ। ये होता था मेरे साथ भी, मतलब मैं कभी किसी को बोलता था ना, जैसे फैमिली फंक्शंस में गए या फिर किसी ने पूछ लिया क्या क्या खेलते हो, ऐसा जैसे बहुत कॉमन होता है, बच्चे बोलते हैं कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, और फिर उसमें भी वैसे रहते कि हाँ मैं लेदर बॉल क्रिकेट खेलता हूँ, तो वो डिफरेंस होता है वो ना, बहुत बड़ा लेदर difference बॉल होता है। क्रिकेट और घर पे खेलने वाला लाइक नीचे ये 1D 2D वाला जो होता है। तो मैं बोल देता था मैं बैडमिंटन खेलता, अच्छा किधर, बिल्डिंग के नीचे, तो वो वैसे आता था। बट कोई मतलब जो मेरी स्टोरीज है, फिर मैं जो भी मैं पोस्ट करता था, फिर मैं कहीं पे खेलने गया, जैसे मैं मुंबई में आता था तो मैं रोहा से आता था, सो मैं 2 दिन का टूर्नामेंट है तो कोई रिलेटिव के पास रहता था, तब मैं उनको समझाता था कि क्या है स्पोर्ट, क्या है, तो मेरा किट बैग देखते थे या फिर जो भी मेरा इक्विपमेंट्स है, तो उन्हें तभी समझ में आया कि हाँ लाइक ये जो स्टीरियोटाइप है कि भाई बैडमिंटन खाली लड़कियों का गेम है, वो थोड़ा वो टाइम पे मैं ब्रेक करने का कोशिश करता था। और अभी तो लाइक जैसे पिक्चर क्लियर है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं हमारे पास जो राइट मेन प्लेयर्स अभी तो ओलंपिक की वजह से काफी और बढ़ने लग गए कि अभी लक्ष्य सेन मतलब दिखने लग गया कि ऐसा कि लड़की वाला गेम नहीं है कोई। हाँ 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 मतलब मतलब स्टीरियोटाइप आई थिंक पहले ही ब्रेक हो चुका था। हाँ, वो जब स्कूल में था ना तभी चला और वो तभी खत्म हो गया। अभी तो सब लोग खेलते। अभी स्कूल का अभी पता नहीं क्या है सिनेरियोस, बट वो टाइम पे था, जैसे मतलब मैंने स्टार्ट किया, मैंने बताया, बोलते थे लोग भाई किधर खेलता है, बिल्डिंग के नीचे, मतलब किसी को बोलता था मैं कोर्ट जा रहा हूँ, सो जो बैडमिंटन का जगह है उसको कोर्ट बोलते हैं, तो जैसे टेनिस कोर्ट होता है जैसे बैडमिंटन कोर्ट, तो किसी को लगता था अरे कोर्ट में क्या काम है, बिकॉज उनको कोर्ट का पिक्चर मतलब हाई कोर्ट वगैरह या फिर जो अपना सिटी का कोर्ट रहता है जहाँ पे सब जुडिशरी होता है, तो वैसा लगता था। बट फिर हमने उसको समझाना पड़ता था कि नहीं, वो जो जहाँ पे बैडमिंटन खेलते हैं, जहाँ पे मार्किंग्स होती है, रूल्स होते हैं, वो उसको कोर्ट बोलते हैं जगह पे। तो धीरे 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 करके वो स्टीरियोटाइप को थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश चल रही थी। बट हाँ मतलब था शुरू में पहले था ऐसा सब। अभी आपने बताया मतलब कोर्ट मार्किंग्स एंड किट बैग वगैरह सब बताया। सो क्रिकेट इज नोन एज अ एक्सपेंसिव स्पोर्ट जब बच्चा कोई स्टार्ट करता है, बिकॉज सब किट विट खरीदना पड़ता है। व्हाट इज द सीन इन बैडमिंटन, मतलब अभी इफ अ किड इज स्टार्टिंग टू प्ले बैडमिंटन, कैसा रहता है, उसको क्या क्या इन्वेस्ट करना पड़ेगा? रैकेट वगैरह। सो जब भी मैंने स्टार्ट किया तब, अगर तभी का मैं बोलूँ तो वो जो कॉस्ट थी वो टाइम के लिए वो थोड़ी ज़्यादा थी। मतलब मेरे पास फर्स्ट रैकेट था जो मुझे गिफ्ट किया था बर्थडे पे, सो दैट वाज सिल्वर्स का रैकेट आता था 350 करके। सो वो 350 रैकेट ऐसा था कि 350 को आता था, मतलब प्राइस उसका 350 था। तो मैंने वो लिया था, मतलब एक्चुअली गिफ्ट था वो। तो वो बेसिक बहुत मतलब स्टार्टर्स रैकेट होते हैं, जैसे तुम लोग क्रिकेट में बोलते हो कि जैसे ये है क्या बिगिनर्स के लिए बैट है या फिर कश्मीर इंग्लिश दोनों, तो जो डिफरेंस रहता है, मेरे को क्रिकेट का ज्यादा इक्विपमेंट नॉलेज नहीं है, बट हाँ जो स्टार्टर्स हर एक स्पोर्ट का इक्विपमेंट होता है, तो वैसा ही वो रैकेट था। फिर मैंने मेरी एक प्राइज मतलब मैं जीता था, लाइक लोकल टूर्नामेंट ऐसे ही, मतलब उसमें 50 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स नहीं होंगे, तो उसमें मुझे समथिंग 850 रुपीज़ फर्स्ट प्राइज मिला था। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि मुझे एक रैकेट लेनी। फिर मम्मी ने बोला कौन सी लेनी है, तो एक अंकल आते थे सुबह, जैसे मैं सुबह खेलने आता था संडे, तो एक ऐसा ग्रुप था अंकल का, तो वो आते थे, तो उनके पास एक रैकेट देखी थी मैं ऑनिक्स की, कार्बोनिक्स 1600, तो वो भी 1600 को आती थी। तो तब मेरी वो सबसे मतलब महंगी रैकेट थी वो मेरे लिए, तब मैंने वो ली थी। और शूज़ का देखा जाए तो वो टाइम पे मेरे पास निविया के शूज़ थे जो 550-600 तक आ जाते थे, अभी कुछ 800-850 के रेंज में है वो, तो ज़्यादा मतलब वो रेंज बड़ा नहीं है। तब निविया से स्टार्ट किया था मैंने, तो मेरा वो टाइम पे किट
ऑलमोस्ट टी शर्ट्स वगैरह पकड़ के 2-2,500 में हो जाता था, क्योंकि पता था ना कि हमें कुछ खेलना नहीं है, हॉबी था। बट थोड़ा जैसे प्रोफेशनली लुक देखे उसको, तो फिर आपका जो एक रैकेट आता है, तो आप अगर प्रोफेशनली खेलो, जैसे डिपेंड करता है कि आप नाइलॉन शटल पे खेल रहे हो या फिर फेदर पे खेल रहे हो। तो नाइलॉन शटल के लिए आप इतना एक्सपेंसिव रैकेट नहीं रखते, लाइक 2-2,500 में हो जाता है आपका। बट अगर फेदर पे खेल रहे हो तो आपको प्रिसीजन, पावर या फिर जो उसका स्ट्रेंथ है रैकेट का वो भी देखना है। तो वो रैकेट आपको 2-2,500 से स्टार्ट होती है और दैट कैन गो अप टू 27,000 तक जाता है। तो मेरे पास बीच में एक थी लीनिंग की एन सीरीज की सेकंड वर्जन उसका, तो वो 27,000 का रैकेट था। तो वो है मतलब अभी भी वो यूज करने के लिए है नहीं, बट वो बस एक भाई, वो शोकेस में रखो उसको। एक मॉन्यूमेंट टाइप होता है ना, जैसे मतलब, या फिर एक प्रेस्टीज आइटम जो हमारे पास होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने वो ली थी। बट एवरेज किटिंग कॉस्ट होता है एक हर एक एथलीट का, जो डिस्ट्रिक्ट खेल रहा है या स्टेट खेल रहा है, उसका एवरेज किटिंग लाइक अगर वो डिपेंड करता है रैकेट कितने लेते हैं, बिकॉज शूज तो मोस्टली एक ही रखते हैं सब लोग। तो रैकेट अगर 2-3 रख रहा है तो वो वेरी करता है, लाइक 5,000 का एवरेज रैकेट पकड़े, सो 15,000 वो हुआ। शूज 9,000 के आते हैं कम से कम, लाइक प्रोफेशनली खेलने जाओ। अब भी जो मेरे पास है उनका MRP है 8,500 है। सो अगर आप थोड़ा और महंगा लेते हैं तो 12,000 13,000 तक आते हैं। सो एक 28-29,000 का एक एवरेज प्राइस है किट का। अगर आप स्टेट प्लेयर के पास देखोगे जो टॉप 30 या टॉप 50 में कम्पीट करता है स्टेट में, तो उसका वो 30,000 का एक हो जाता है, क्योंकि अपैरल्स आ गया, फिर उसका बैट का ग्रिप आ गया, फिर जो उसके रिस्ट बैंड्स है या फिर जो भी एक्सेसरीज है अलग से उसका, तो 30,000 का एक एवरेज अमाउंट का किट होता है। अच्छा, सो दैट इज फॉर अ स्टेट प्लेयर। एंड सपोज कोई बिगनर है जो अभी जस्ट एकेडमी ज्वाइन करके आ रहा है, दैट विल बी अराउंड 3,000 जो आपने बोला था पहले। हाँ, मतलब 3,000-4,000 अभी उसमें भी कैसा कि वो टाइम पे हमें पता नहीं था एक्चुअली, लाइक ड्यू टू मतलब क्या बोलते हैं कि हम लोग वीडियोस देखते थे खाली, बट हमें पता नहीं था कि इक्विपमेंट क्या है वो प्लेयर यूज कर रहा है। अभी कुछ बच्चे हैं जैसे 8th-9th में होते हैं या फिर जो 7th में है, तो उनके पास वो एक मोबाइल है या फिर है, तो वो इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं कि ये एथलीट ने क्या इक्विपमेंट यूज किया है। सो अभी मोस्टली ज्यादा हो सकता है वो किटिंग प्रेस, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है कि पेरेंट्स को पूछते हैं कि मुझे ये चाहिए। चलो वो नहीं तो उससे कम रेंज में देखते हैं। सो अगर कोई बच्चा 9,000 के शूज मांग रहा है तो पापा 9,000 की नहीं पर 4,000 की तो दिलाई लेंगे। तो वो 4,000 तो शूज में चले गए। फिर रैकेट आई 2-3 हजार की, तो वो 7,000 का टोटल वो हुआ। और टी शर्ट चलो स्टार्टिंग में घर के है, तो भी 8-9,000 का वो अभी का स्टार्टर पैक वाला सीन है। समझा। अभी इन रिसेंट टाइम्स मैंने भी कुछ नोटिस किया इवन इन माय फैमिली सर्कल कि पहले जैसा नहीं रहा। अभी बच्चों के पेरेंट्स जो है ना, दे डोंट पुट देयर किड इनटू क्रिकेट। भले उनको पसंद है, दे गो इनटू डिफरेंट स्पोर्ट्स, जैसे बैडमिंटन वगैरह हो गया, एंड वो मतलब अच्छा खासा उन पे स्पेंड भी करते हैं। सो मतलब मेरे स्कूल में भी अभी बहुत ऐसे अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स चालू हुए। फॉर एग्जांपल बास्केटबॉल हुआ है, देयर इज बेसबॉल, हैंडबॉल वगैरह। सो उसमें भी बहुत बच्चे खेल रहे हैं अभी। वो काफ़ी नए स्पोर्ट को और बढ़ावा दे रहे हैं सब, तो अच्छा है। हाँ, अच्छी बात है। मतलब मैं तो कहूँगा कि अभी क्रिकेट में सब मेरा जो व्यू है कि बहुत कंपटीशन में या फिर पार्टिसिपेशन बहुत भीड़ हो गई है। मतलब अगर आप टॉप परफॉर्मेंस पे नहीं हो तुम्हारे या फिर बेस्ट पे नहीं हो, तो आपको रिप्लेस करने के लिए एक दिन भी नहीं लगेगा। कोई ना कोई और एक वहाँ पे बच्चा होता है जो आपको रिप्लेस कर सकता है। इवन जैसे अभी मैंने देखा कि सिलेक्शन के लाइन में हो या फिर आप ट्रायल्स देने गए हो, आपके पीछे जो बच्चा खड़ा है ना, वो आपसे 100 गुना अच्छा हो सकता है। अगर आपने परफॉर्म नहीं किया, आप बाहर हो। सो बाकी स्पोर्ट्स का भी अगर मतलब एक्सप्लोर कर रहे हैं पेरेंट्स, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती है, जैसे अभी बैडमिंटन के लिए अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, लाइक इवन एज अ स्पोर्टिंग करियर देखा जाए ना, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। अगर बच्चा आज स्टार्ट कर रहा है, इफ ही इज 8-9 ईयर्स ओल्ड, तो अगर आज स्टार्ट कर रहा है, तो आप अगर उसको 10 साल तक अच्छी कोचिंग दे सकते हो, या फिर 6-7 साल या फिर 2 साल की मिनिमम लेवल पे अच्छी कोचिंग मिल सकती है, ही कैन डू वंडर्स। जब मैंने स्टार्ट किया, मैं 9 साल विदाउट कोचिंग किया, इट वॉज 9 ईयर्स विदाउट कोचिंग। सो उसके बाद जब मेरे सर थे जो योगेश पाटिल, जैसे मैंने मेंशन किया, उन्होंने मेरा टैलेंट रिकॉग्नाइज करके फिर मुझे एक एकेडमी दिलवाई। सो इट वाज हिज एकेडमी। तो उनके एकेडमी में ट्रेन होते होते मैं आगे गया। फिर उसके बाद मेरे लाइफ में बहुत सारे कोचेस आए,
मिस्टर शिवा कराइल, सो जो अभी DY पाटिल में हेड कोच है। फिर हमारे ठाणे के जैसे श्रीकांत वाडसर है जो अभी MBA पे कमेटी में है। फिर अक्षय देवलकर है जो एक्स इंडियन प्लेयर है। और फिर मेरा कुछ ग्रुप था, जैसे मैं ठाणे एकेडमी में खेलता था, सो वहाँ पे मेरा एक ग्रुप था। सो वहाँ पे आदित्य ओकर के मेरा एक दोस्त था, तो वो प्लेयर है अभी, ही इज़ ऑल्सो डूइंग गुड, वो प्रोफेशनली खेल रहा है। और मेरे वहाँ पे सीनियर्स थे, एक दीप रामबिया करके, ही इज़ नाउ अ वेल नोन प्लेयर। तो मतलब अगर आप वो सर्कल में हो, लाइक एक गुड कोचिंग सेंटर में हो, या फिर एक एवरेज भी कोचिंग सेंटर में हो ना, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा है। और मतलब एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है आपके अराउंड की, और आप फोकस हो जाते हो ऑटोमेटिकली। जब मैं एकेडमी में गया था फर्स्ट टाइम, तो मैंने तो मतलब देखा कि मेरे से जो छोटा था लाइक 2 साल, वो भी मेरे से अच्छा खेलता है। तो आई वॉज बिट लकी कि वो मेरे एज ग्रुप में नहीं खेलता था, नहीं तो मेरा तो फर्स्ट राउंड मतलब खत्म था मैं। तो वैसा सब है अभी। मतलब अभी जब मैं मेरे एकेडमी में जाता हूँ, मतलब अभी मैं वो एकेडमी में नहीं हूँ, बट आई स्टिल कॉल इट एज अ माई एकेडमी, क्योंकि मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया था। तो अभी उसका सेंटर पनवेल में तो बेस्ट था, बट अभी एक वाशी में है, तो मैं वहाँ पे वीकेंड्स पे जाता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि जो छोटे बच्चे या फिर जो पेरेंट्स आते हैं ना, वो बहुत कुछ करते हैं वो लोगों के लिए। मतलब लिटरली वो लोग सैटरडे संडे वो बच्चों के साथ बैठते हैं। मुझे तो पता भी नहीं मेरे मम्मी पापा कब मेरा गेम देखने आए। मतलब लिटरली मेरी मम्मी बोलती थी कि मुझे देखना नहीं है तुझे खेलते हुए, मतलब मैं कुछ खेल रहा हूँ, डाइव मार रहा हूँ, तो उसको डर लगता था कि ये क्या है, मतलब जो कि हमारे लिए नॉर्मल है, या फिर प्लेयर्स के नॉर्मल था, भाई थोड़ा बहुत खरोच हो गया, बिकॉज कोर्ट सिंथेटिक था, लाइक ब्रूजेस आते थे अगर आप डाइव मारते थे। हाँ, बट अभी के पेरेंट्स, आई वुड से आई एम वेरी मच थैंकफुल कि वो सब अभी नए नए अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं अलग स्पोर्ट की, नॉट ओनली बैडमिंटन बट कुछ अलग स्पोर्ट्स है अभी, जैसे पिकल बॉल इमर्जिंग हो रहा है। सो आई गेस उधर अपॉर्चुनिटीज है। अभी रिसेंटली मैं एक नेस्को में टूर्नामेंट हुआ था मानसून पिकल बॉल, तो वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे पेरेंट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब लेजर स्पोर्ट को एक प्रोफेशनलिज्म दे दिया था उन्होंने पूरा, और उनके बच्चे वहाँ पे एज अ पार्टिसिपेंट है या फिर एज अ एथलीट है, सो उनको एक घर में बूस्ट मिलता है। सो अच्छी बात है आई वुड से राइट नाउ। वो बहुत अभी वो चल रहा है ना, मैंने कोई तो पॉडकास्ट में सुना था कि रैकेट स्पोर्ट्स जो है ना, दैट विल इंक्रीज योर लाइफ स्पैन, बिकॉज उसमें तेरा स्टैमिना भी टेस्ट होता है, तेरा हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी रहता है, एंड तेरे को जज करके मतलब करना पड़ता है कि इधर लैंड होना चाहिए, इधर लैंड होना चाहिए। सो तेरे सब सेंसेस उसमें यूज होता है। सो अगेन दैट इज अ वेरी क्या बोलते हैं उसको, इम्पोर्टेंट नहीं बट क्रूशियल स्पोर्ट है, मतलब इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। नाइस। तो अभी इंडिया में लीग्स कैसे है, लीग्स है या फिर महाराष्ट्र की बात करेंगे अगर अपन, तो कुछ बॉडी है महाराष्ट्र की जो बैडमिंटन के लिए बनाई है, और वो लोग क्या काम करते हैं कुछ? अभी महाराष्ट्र में बॉडी है महाराष्ट्र बैडमिंटन एसोसिएशन करके, जो बैडमिंटन को रेगुलेट करती है बेसिकली। तो वहाँ पे जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, जो मेरे एक कोच थे, लाइक अभी जो हेड कोच थे ठाणे एकेडमी के, तो श्रीकांत वाडसर, तो वो अभी वहाँ पे है एसोसिएशन में, तो वो सारा रेगुलेट करते हैं। और अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है कि अगर आप यहाँ पे आपके एरिया में भी अगर आपको स्टेट टूर्नामेंट करनी है, जैसे कंसिडरिंग जैसे मुलुंड है या फिर कोई ठाणे है, आप वहाँ पे सोचते हो कि मुझे आज ये करना है, लाइक स्टेट टूर्नामेंट लाइक 2 महीने में अरेंज करनी है, सो उसके लिए आपको परमिशंस लेनी पड़ती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से नहीं, एसोसिएशन से लेनी पड़ती है जो अभी गेम को रेगुलेट कर रहा है। तो वो जब रेगुलेट मतलब वो जो परमिशन लोगे तभी आप खेल सकते हो, या फिर आप वो ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और अगर आपने ऑर्गेनाइज करी है तो वो एज अ अनऑथोराइज्ड टूर्नामेंट करके हम टर्म करते हैं उसको। सो इन दैट केस अगर कोई अंपायर जो एसोसिएशन में या फिर महाराष्ट्र बैडमिंटन एसोसिएशन के साथ एफिलिएटेड है, या फिर वो अंपायर है उनकी तरफ से, और वो आता है आपके यहाँ पे और काम करता है, सो उस पर कुछ रेगुलेटरी एक्शंस लिए जाते हैं। तो वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया अभी, विच इज़ ऑल्सो नाइस कि कुछ टूर्नामेंट्स है कि यू कैन आस्क फॉर परमिशंस दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं करना है। तो रेगुलेटरी बॉडी अभी बहुत स्ट्रिक्ट है, विच इज़ अ गुड पॉइंट कि आप कर सकते हो, आप उनके साथ लाइजनिंग कर सकते हो और ये सब टूर्नामेंट्स कर सकते हो। और टॉकिंग अबाउट द लीग्स,
जैसे मैंने लीग खेला था रिसेंटली, एक लास्ट ईयर, नई मुंबई बैडमिंटन लीग। सो वो भी एक एफिलेटेड लीग था स्टेट से। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस इट वाज गुड। फर्स्ट टाइम हुआ था तभी भी अच्छा था। मैं दोनों सीजन खेला था उसके। सो फर्स्ट सीजन तो ऑफ कोर्स मैं आ रहा था, बट सेकंड सीजन परफॉर्मेंस अच्छा था, लाइक टीम का, इट वाज अ टीम स्पोर्ट। तो मतलब 10 लोग होते हैं आपके टीम में, 8 men 2 women वैसा सब। और अभी थोड़ा थोड़ा करके लाइक इनिशिएटिव लिया जा रहा है टू क्रिएट अ लीग इन स्टेट। अभी जैसे पीबीएल था, सो पीबीएल इवेंचुअली फेल्ड ड्यू टू सम रीजंस, तो हमें वो अभी तक पता नहीं है। बट दोज हु आर ट्राइंग टू रीजनरेट द लीग्स, मतलब देख रहे हैं यहाँ पे, लाइक जैसे मुंबई गेम्स होता था हमारे यहाँ पे, तो एक सर्टन ऐसा लाइक टीम्स बने थे, लाइक कुछ दे टर्म्ड इट एज फैल्कन्स, मैवरिक्स, सो सेंट्रल चैलेंजर जो सेंट्रल लाइन पे रहता, तो उसमें आप एड्रेस देना। सो एक आपको वो पॉइंट मिल गया था कि यार आई एम रिप्रेजेंटिंग माई जोन, या फिर जो एरिया रहता है। जैसे जब मैं खेला था वो सेंट्रल चैलेंजर्स था, तो जो लोग घाटकोपर, कुर्ला, भांडुप, मुलुंड उधर रहते थे, तो उनके लिए वो ऐसा था कि हाँ मैं वो जोन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो इट वाज काइंड ऑफ लीग वो पॉइंट पे। बट आई गेस और इनिशिएटिव होने चाहिए वहाँ पे करने के लिए, कि आप लीग अरेंज करें खुद का करो, या फिर आप स्टेट को अप्रोच करो, उनसे हेल्प लो। अगर वो हेल्प कर रहा है आपको वो सब लीग्स फॉर्म करने में, या फिर लाइक छोटा सा लीग 10-15 डेज, लाइक बिकॉज एक नेशनल टूर्नामेंट है आपका, अगर रन कर रहे हो तो आपको 10 डेज लगते हैं, लाइक क्वालिफिकेशंस और एक 4-5 दिन का मेन ड्रॉ पकड़ के। सो एक हफ्ता से 10 दिन का एक टेन्योर होता है उसका, कंप्लीट लीग का, कंप्लीट एक टूर्नामेंट का, लीग का नहीं है ये, टूर्नामेंट है। जैसे एक नेशनल टूर्नामेंट समझो हो रहा है यहाँ पे, तो 3 दिन का क्वालिफिकेशन राउंड होता है, फिर जो क्वालिफाई हो रहे हैं वो मेन ड्रॉ में खेलते हैं, वैसे होगा। सो अगर आप लीग करने जाओ तो एक 10 दिन आप कंसिडर करके आप एक कर सकते हो आई गेस, और इतना इनिशिएटिव लेना चाहिए। सो अगर कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है, या फिर जो अरेंजमेंट्स है, वेन्यू अरेंजमेंट्स है, वो करने के लिए अभी तक महाराष्ट्र में इतना लीग्स नहीं हुआ है कंपैरेटिवली, बट यस वी कैन डू। और उससे क्या होगा कि टैलेंट स्काउटिंग बहुत इजी हो सकता है, और टैलेंट स्काउट इजी होगा तो हमारी महाराष्ट्र की टीम ऑलरेडी बहुत अच्छी है। लाइक आई एम ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट टीम, लाइक जो रिसेंट ईयर में थी, या फिर उसके पहले भी जो टीम बनी थी। आई एम ब्लेस्ड कि सब प्लेयर्स के साथ मतलब मैं खेला हूँ और वो सब था, एंड मेनी ऑफ देम आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया एज वेल, अभी इंटरनेशनली खेल रहे हैं। तो और अच्छे प्लेयर हमारे पास आते रहेंगे या फिर बनते रहेंगे। सो एक इनिशिएटिव लेना चाहिए आई गेस। जस्ट फॉर द ऑडियंस दैट डू नॉट नो, पीबीएल के बारे में थोड़ा बोल सकते हो आप? पीबीएल एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत सस्टेन करेगा, बिकॉज द वे इट वाज स्ट्रक्चर्ड, जैसे पहले टीम्स कम थी, फिर 2-3 टीम्स ऐड हो गई, तो मुझे लगा कि वो बहुत सस्टेन करेगा। और हमारे यहाँ पे जो यंगस्टर्स है, या फिर जो थे अभी वो टाइम पे बहुत कंसिडरेबल प्लेयर्स थे जो खेल सकते थे वहाँ पे, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी वो मिस हो गया जैसे पीबीएल बंद हो गया। बट पीबीएल ने एक स्टेज क्रिएट किया बैडमिंटन के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब लोगों को लगता था कि हाँ मेरा बच्चा स्टेट टूर्नामेंट को गया, लाइक तुम्हें पता है, तुम्हारे घर वालों को पता है, और 2-4 रिलेटिव्स जो आपके कांटेक्ट में होते हैं या फिर फ्रेंड्स है। तो पीबीएल में अगर आपका स्टूडेंट है, एकेडमिक स्टूडेंट है, या फिर कोई इंडिया प्लेयर खेल रहा है या इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहा है, उनको एक अलग से रिकॉग्निशन मिला पीबीएल की वजह से। सो पीबीएल डिड अ मेजर रोल कि जहाँ पे एक प्लेयर ऑक्शन हुआ है, लाइक वो आपका स्टूडेंट है या फिर एकेडमी प्लेयर है, ही इज ऑन टीवी, तो वो आगे जाके आपके एकेडमी का नाम लेगा कि मैं ये एकेडमी में खेलता था। जैसे मैंने बोला कि मैं ठाणे एकेडमी में खेलता था, फिर योगेश पाटिल बैडमिंटन एकेडमी में खेलता था, वैसे आप अगर टीवी पे नाम ले रहे हो उसका एकेडमी का, या फिर जो सर है या कोच आपको जो सिखा रहे, सो इट्स अ बिग थिंग कि प्लेयर को रिकॉग्निशन मिल रहा है, एकेडमी मिल रहा है, और एज वेल जो कोच है उनको भी मिल रहा है। और दूसरी साइड पे यू गेट कनेक्टेड विद फॉरेन प्लेयर्स। तो वो लीग में ऐसा स्ट्रक्चर हुआ था कि बहुत सारे बाहर से प्लेयर आ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ प्लेयर कॉल्ड मार्कस किडो, ग्रेट प्लेयर, मतलब लेजेंड है बैडमिंटन में, तो डबल्स प्लेयर है। मतलब जस्ट इमेजिन आप उनके साथ ट्रेनिंग सेशन में पेयर अप कर रहे हो, मतलब
यू हैव नो वंडर्स, मतलब क्या कर रहे हो कुछ नहीं, लाइक ड्रीमिंग वाला सीन है वो आपके लिए कोर्ट पे। मतलब जिनको जिनको वो पता है, लाइक वो बहुत अभी पुराने प्लेयर है मार्कस क्रीडो, और सोचो अगर कोई लिंडन या फिर ली चोंग वे वो उसमें है एंड आपको उसके साथ मतलब वो सामने खेल रहे हैं और उनके अगेंस्ट आप खेल रहे हो, तो वो जो आप टीवी पे देखते थे अब वो खुद खेल रहे हो। राइट। तो वैसे पीबीएल ने एक स्टेज दिया लाइक इंडिया में बहुत सारे प्लेयर्स को। बहुत ग्रेट पॉइंट है, मतलब इसमें द प्लेयर गॉट इंटरनेशनल एक्सपोजर, सेकंड उसको कोर्ट मतलब अच्छे फैसिलिटीज में खेलने मिलता रहेगा, एंड थर्ड उसकी वजह से एज इंटरनेशनल प्लेयर्स आर कमिंग हियर अपना जो फैसिलिटीज एग्जिस्टिंग है वो भी बेटर होता रहेगा। सो वो बंद हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट था, बट बहुत तगड़ा चालू होना चाहिए वो फिर से। आई मीन सबके लिए वो प्लेयर्स के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है वो। नॉट ओनली बैडमिंटन बट हर एक स्पोर्ट के लिए कोई एग्जिस्टिंग लीग होगा ना, तो मतलब बच्चे अंदर से वो स्पोर्ट टेकअप करेंगे। जैसे अभी क्रिकेट के लिए बहुत पार्टिसिपेशन है, अभी बैडमिंटन के लिए भी वैसा सिनेरियो हो सकता है आगे जाके, बट कुछ स्पोर्ट्स है जहाँ पे नहीं है। तुम लाइक बास्केटबॉल के लिए 3v3 चालू हुआ था, लीग था इंडिया में। सो मतलब हर एक स्पोर्ट के लिए आप एक करोगे। जैसे कबड्डी आज कहाँ से कहाँ है, जब पीकेएल स्टार्ट हुआ था, प्रो कबड्डी सीजन 1 था, तो वहां पे बहुत कम टीम थे और हमें भी बहुत कम प्लेयर पता थे। जैसे अनूप कुमार है, राकेश कुमार है, 2-3 प्लेयर पता थे हमें तभी, या फिर मंजीत छिलर थे, जिसे हम उनको देखते थे क्योंकि इंडिया के लिए वो खेलते थे तभी। फिर उसके बाद कुछ नए प्लेयर्स आए, फिर हम उनको जानने लगे। सो पीकेएल वैसे कबड्डी बहुत लिफ्ट हो गया। सो आई गेस वो टाइप से अगर कोई हर एक स्पोर्ट के लिए थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूशन आ जाए हमारे यहाँ से, सो इट विल बी ग्रेट। सिमिलरली अभी टेबल टेनिस का भी यूटीटी भी हो रहा है वैसे ही सेम फॉर्मेट में कि नहीं। अभी और एक मेरे को था कि फेवरेटिज्म होता है बैडमिंटन में, अप टू सर्टेन पॉइंट होता है, मतलब वो कौन से स्पोर्ट में नहीं होता है नहीं, वो तो हर स्पोर्ट में होता है। लास्ट टाइम हमने कराटे की बात करी थी तो उसमें भी हुआ, बट बैडमिंटन में भी होता है। वो कैसे होता है, मतलब कुछ आइडिया है? इसका कौन अच्छा लगा? नहीं मतलब कैसे सिलेक्ट करते हैं कि अभी मेरा भतीजा ले लो इसको आके, ऐसा कुछ है या फिर? नहीं, ऐसा नहीं होता है लाइक कोई भतीजा है या फिर मेरा पोता होता है, ऐसा कुछ फेवरेटिज्म नहीं होता है। वो बहुत एकेडमिक क्लैशेस होते हैं। ओके, मतलब राइवल एकेडमीज होते हैं ना, जैसे एक ही एरिया में 2 एकेडमीज होते हैं कभी कभी, तो वो एरिया के आधे बच्चे एक एकेडमी नंबर 1 और आधे एकेडमी 2 में जाते हैं, तो कभी उनका फेस ऑफ हो जाता है जैसे फाइनल सेमीफाइनल। वो बहुत अच्छा है, मतलब इंटरेस्टिंग होता है फेस ऑफ देखना वो। और वो टाइम पे मान के चलो लाइक जो चीफ रेफरी या फिर जो कमिटी मेंबर है वो किसी को फेवरेटिज्म का चांस दे रहा है। जैसे एक्स एकेडमी के साथ वो लिंकअप है, लाइक सुबह या फिर उधर खेलने जाता है। बेसिक चीज है ना कि तुझे अगर रोज खेलने जाना है या फिर जो मेंबर उनको खेलने जाना है, तो वो बायसनेस आ जाएगा, मतलब तो वैसे होता है बहुत टाइम में। बट एज सच फेवरेटिज्म है नहीं, मतलब आई वुड से एंड इट्स ग्रेट कि ऐसा चाचा भतीजा वाला नहीं, वो सीन नहीं, वो नहीं सबसे है। बेटर है क्योंकि बाकी स्पोर्ट्स में तो है काफी। बट एकेडमी वाइज वो होता है कि अगर आपकी कोई पहचान है सिलेक्शन कमेटी में और आप एक एकेडमी में हो, तो आप पिच इन करो, परफॉर्मेंस मतलब बहुत सारे अभी जो अपना सिलेक्शन कमेटी भी है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। लाइक ये सब चीज़ें बहुत छोटे लेवल पे दिखती है, फेवरेटिज्म वगैरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर छोटी मोटी चीज़ें, बट उसमें भी अभी आजकल बहुत सारा रेगुलेटरी एक्शंस आ गया है, तो वहाँ पे अभी परफॉर्मेंस भी देते हैं। पहले ऐसा था मतलब कि हाँ ये एकेडमी से है सिलेक्ट कर लेते हैं, अभी ये एकेडमी से है बट ये हैवंट परफॉर्म क्वार्टर फाइनल्स तक, तो छोड़ दो भाई, नहीं हो पाएगा। मतलब कुछ परफॉर्मेंस चाहिए। अगर तुम हमारे पास आ रहे हो, पिच इन कर रहे हो, एटलीस्ट सेमीफाइनल्स क्वार्टर फाइनल्स तक खेलो, तो तभी हम लोग देख सकते हैं, फिर एक्स्ट्रास के लिए कंसिडर कर सकते हैं। काफ़ी सीन अच्छा है। आई मीन बैडमिंटन का मैंने जितने स्पोर्ट देखे हैं उसमें तो मैंने क्या बोलते हैं फेवरेटिज्म भी देखा है और लड़ाई भी देखा है, लेकिन मैं अभी वेदांत से सुन रहा हूँ इतना सब, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि ये स्पोर्ट काफ़ी स्मूथ है। तो अच्छा है कि ऐसे होना चाहिए। वेल रेप्यूटेड स्पोर्ट एंड इंडिया में देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु फॉलो बैडमिंटन, एंड इन माय ओपिनियन बैडमिंटन आई थिंक आफ्टर क्रिकेट वगैरह बैडमिंटन अच्छा स्पोर्ट है। मतलब इंडिया में बहुत लोग खेलते हैं पहले से ही, मतलब इवन योर पेरेंट्स में से अगर किसी को देखेगा तो एक कोई ना कोई तो रहेगा कि जो बैडमिंटन खेला है। हाँ।
सो गोइंग फॉरवर्ड अभी एवरीवन नोज कि ओलंपिक्स में क्या हुआ. वी वर ग्रेट इन द स्टार्ट बट इन द एंड थोड़ा जाते जाते हो ना सका जो होना चाहिए था. फॉर एग्जांपल लक्ष्य सेन, सात्विक चिराग का जैसे तूने बोला जैसे सेम. तो गोइंग फॉरवर्ड अगर सपोज इफ़ यू आर अ क्रूशल पार्ट इन द इकोसिस्टम ऑफ बैडमिंटन इन इंडिया, तो तेरे को क्या लगता है क्या चेंजेस आना चाहिए इंडिया में? इंडिया में चेंजेस सी ऐसे चेंज अलग से नहीं ला सकते. लाइक अगर मैं हाइपोथेटिकली भी सोचता भी होगा कंडीशन में हो, तो मैं वो नहीं सोच सकता कि जो पीछे बैठा हुआ कोच सोच रहा है. लाइक क्योंकि उनके पास वेल वर्स्ड एक्सपीरियंस है वो चीज़ में. और मैं भले ही मेरा खुद का कोचिंग सेंटर हो, मैं लोगों को सिखाता हूँ व्हाटएवर, दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट. बट आप जब इतने बड़े स्टेज पे हो लाइक ओलंपिक्स, तो वहाँ पे प्लेयर और एक कोच का मेंटालिटी बहुत अलग है. सो जैसे आप कह रहे हो कि मैं हाइपोथेटिकली सोचूं, तो इट्स अ डिफिकल्ट कि मैं क्या चेंज लाऊं उसके अंदर, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी है कि इट्स अ विनिंग थिंग. क्योंकि आप एक प्राइड कैरी कर रहे हो. लाइक आपके पीछे एक नाम लगा है इंडिया, एक जर्सी पे नाम लिखा है. एनी टाइम मतलब कोई भी स्पोर्ट है, इवन क्रिकेट में भी जैसे आप खेल रहे हो, नेशनल एंथम हो रही है, गूज़बम्स आ रहे हैं. होता है, बहुत प्लेयर्स के साथ होता है. जैसे बैडमिंटन में भी है, लाइक आप खेल रहे हो, आपके पीछे इंडिया लिखा होता है. सो आप एक वो लेवल पे हो कि वहाँ पे विनिंग इज द प्राइड आपके लिए और सबके लिए, आपका परफॉर्मेंस भी बेसिकली. तो मैं अभी नहीं सोच सकता कि वहाँ पे क्या चेंज लाना चाहिए. बट एक बात कह सकता हूँ टू बी वेरी ऑनेस्टली कि जो हम अभी फॉलो कर रहे हैं, जो एक ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत सारे प्लेयर्स है या फिर ग्रास रूट लेवल पे जो स्टार्ट कर रहे हैं प्लेयर्स, उन्हें एक अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके, या फिर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी हम अर्बन सिटीज़ में देते हैं या फिर जो कोचिंग सेंटर्स प्रोवाइड करते हैं, वो अगर एक सेंटर वहाँ का लाइक नियरेस्ट रूरल टाउन है या फिर कोई एरिया है जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी कम है बट प्लेयर्स हैं वहाँ पे, लाइक इफ़ यू कैन फाइंड अ मार्केट वहाँ पे, तो मतलब वो टैप करो तो उनको एक बेटर फैसिलिटी मिल सकते हैं. तो वहाँ से बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे. अभी किदम्बी श्रीकांत के बाद हमने लक्ष्य सेन को देखा. अभी उनके बीच में देयर आर सो मेनी प्लेयर्स, लाइक प्रियांशु रजावत है, किरण जॉर्ज, मैं मेन सिंगल्स की बात कर रहा हूँ. सो किदम्बी श्रीकांत वॉज एट टॉप फॉर्म जब उन्होंने लिंडन को फिर चेनलॉन्ग को एक ही टूर्नामेंट में हराया. सो वो वंस इन ऐसा लाइफ टाइम वाला सीन्स रहते हैं इंडिया में. जैसे पीवी सिंधु है, जब वो 2016 का रियो का सिल्वर मेडल आया था, उसके बाद शी वेंट ऑन टू विनिंग द वर्ल्ड चैंपियनशिप. फिर उसका एक राइवलरी क्रिएट होना कैरोलिना मरीन के साथ, बट ऑन कोर्ट राइवलरी, नॉट ऑफ कोर्ट, क्योंकि ऑफ कोर्ट तो हमने देखा है इंस्टाग्राम पे, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स. सो फिर ऐसा एक बहुत मेजर टर्नओवर हो जाता है कि अभी ये गया तो और कौन. जैसे हमें एक था बीच में कि अभी लक्ष्य सेन आया है, थैंकफुल, बट किदम्बी श्रीकांत इज नॉट परफॉर्मिंग, उसका परफॉर्मेंस थोड़ा लो है. इट इज क्वाइट नॉर्मल, एथलीट है, तो अभी कौन चार्ज लेगा टू लीड द स्टेप्स. तो इट वाज लक्ष्य सेन. बट जैसे अभी ये भी है लाइक सात्विक एंड चिराग है, लाइक डबल्स प्लेयर है, सो दे आर इन टॉप नॉच फॉर्म आई वुड से. मतलब उन्होंने जो कंसिस्टेंसी दिखाई है इवन इन ओलंपिक्स, फिर फ्रेंच ओपन और जो भी उन्होंने टूर्नामेंट खेले, दैट इज मैसिव. तो अगर वो एक स्टेज क्रिएट किया था उन्होंने, सो वैसे स्टेज हम लोग अगर 10% भी क्रिएट कर पाए ग्रास रूट लेवल पे, कि उनको एक फैसिलिटीज देना है, लाइक मिनिमम फैसिलिटीज की कोचिंग प्रोग्राम, या फिर जो कोचेस है थोड़े बहुत अच्छे ट्रेंड हो, who can teach them how to reach to the district level. So वहाँ से फिर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम, स्काउटिंग्स कर सकते हैं. मतलब बचपन से ही वो एनवायरनमेंट में बड़े हो जाए, सो आगे जाके उनको एक्सपोजर वैसे मिलेगा. एग्जैक्टली. हम लोग मतलब लास्ट एपिसोड जो हुआ था अनीश के साथ, नहीं देखा तो जरूर देखना. सो उसमें हम लोग मतलब पॉडकास्ट आने के पहले वही बात कर रहे थे कि we have saw this in cricket as well and other sports also कि India when it comes to pressure situations, तो प्लेयर का माइंडसेट इट गेट्स इन द गेम, थोड़ा ये हो जाता है, फंबल करते हैं. इन क्रिकेट भी होता है. सो हमने वही पॉइंट डिस्कस किया था कि इन ही ऑल्सो सेड दैट कि
इंडिया नीड्स अ साइकोलॉजिकल ये मेंटल ट्रेनिंग चाहिए, आई मीन मेंटल नहीं, साइकोलॉजिस्ट चाहिए जो टीम के साथ ट्रैवल करे. हम्म. सो ही विल एनालाइज कि बंदा कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट बेसिकली मतलब कैसे करना चाहिए वही. सो आई वुड एग्री ऑन दैट पॉइंट कि साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, बट साइकोलॉजिस्ट आप लेके जा रहे हो या फिर जो भी एक्सपीरियंस आदमी आप एज अ मेंटल कोच उसको लेके जा रहे हो, वो गेम के टाइम पे तो परफॉर्म नहीं करेगा. हाँ, प्री गेम या फिर पोस्ट गेम आपका जो भी प्रोसीजर्स है वो कर सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू द गेम या फिर वो पॉइंट है जैसे आपने बोला कि कुछ ऐसा क्रूशियल पॉइंट आ जाता है वहाँ पे, इट्स विनिंग और नथिंग. नहीं कंप्लीटली मतलब इफ अभी सपोज सेमीफाइनल हो रहा है तो इट इज कंप्लीटली ऑन द प्लेयर, बट जस्ट बिफोर द मैच जो प्रेशर रहता है या फिर थ्रू आउट द सीरीज चलते रहता है सब कुछ, दैट इज वेयर इट इज रिक्वायर्ड. सी वहाँ पे द स्ट्रेस यू कैन से मतलब होता है लाइक कि आप व्हेन यू आर गोइंग अप अगेंस्ट अ प्लेयर जो आपसे हाईली सीडेड है, लाइक इन बैडमिंटन जो हाईली सीडेड है या फिर सीडेड नहीं है बट वो बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके आ रहा है. यू आर अ न्यू प्लेयर, यंग प्लेयर हो, जैसे अभी लक्ष्य सेन फेसिंग एक्सेलसन. Excelsen being world number 1, Lakshya Sen was nowhere at that point. Right. So he was just starting off with the getting on the top 10 list. So वो time पे pressure handle करना, it's a part of athlete as well. I would say. Coach will do his things. He will do his procedures also. You need to follow that. Right. Coach, even for the physical coach या फिर जो आपका कोच सिखा रहा है ना, he will teach you 100 things कि कोर्ट पे ऐसे करना है वैसे करना है, बट वो पॉइंट पे आप क्या करते हो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल थिंग कि आप क्या सोच रहे हो मैच के बारे में. वो आपको कोच करेगा कि अरे मत सोचना, या फिर कुछ और उनके पास होता है अच्छा एक्सपेरिमेंटेशंस कि वो हिसाब से यू विल गेट अ थिंग कि मैच के बिफोर हाँ नहीं चिल मैच हो जाएगा. बट जब आप वो किडबैक उठाओगे एंड व्हेन यू विल डू अ लाइनअप फॉर योर मैच, तो वो टाइम पे आपको अगर कोच की बात याद आ रही है इट्स गुड, बट आप अगर साइकोलॉजिकल ऐसा सोचोगे यार मैं एक्सेलसन के अगेंस्ट जा रहा हूँ, अरे इसने ये खेला तो मैं क्या करूंगा, सो दैट इज कंप्लीट एथलीट्स माइंडसेट. तो वो माइंडसेट चेंज करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम अ बहुत अर्ली स्टेज. मतलब मैं कुछ भी हो तो आई विल अभी मैं बोलूंगा तो सिर्फ अर्ली स्टेजेस के बारे में, बिकॉज एथलीट एक पॉइंट पे आ जाता है, एक बार नेशनल प्रोफेशनलिज्म आ जाता है. सो उसको ऐसा रहता है कि हाँ मैं वर्ल्ड में या फिर इंडिया में नंबर 1 हूँ, सो मेरे आगे या फिर मेरे सामने जो खेलेगा वो तो मेरे से रैंकिंग में कम है. सो ऐसे नहीं सोचना कि हाँ हो जाएगा आज का मैच, वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है. कभी कभी ऐसा होता है लाइक मेरे साथ हुआ है, मैं जब खेल रहा था लाइक स्टेट में, जो मेरे सामने वाला प्लेयर था वो अनसीडेड था, ना लाइक क्या ही होगा ये इसको हरा दूंगा, बट इवेंचुअली मैं हार गया. तो वो माइंडसेट की बात है, मैं बहुत लूज खेल रहा था, फिर मेरे दिमाग में बात चल रही थी यार इसको हराना ही बैठ गया था कि हाँ नॉर्मल प्लेयर है कुछ नहीं मैं जीत जाऊंगा. साइकोलॉजिस्ट या फिर मेंटल कोच आई वुड से नीडेड है, बट मोर ऑफ एथलीट पार्ट वो भी कितना फॉलो करता है उसको, एथलीट पे भी डिपेंड करता है सब. हाँ मतलब मैं आज अगर स्पर्श को मतलब मैं बता रहा हूँ मैं 10 चीजें तो ये कर, और जाके खाली 2 चीजें फॉलो करेगा, सच होते हैं ये जो बोला है वो सच तो मतलब कैसे होगा ना. इट्स अ बेसिक थिंग कि आप हाँ उनको एक्सपीरियंस नहीं होगा, गेम का एक्सपीरियंस नहीं है, बट ही नो हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन बेसिकली. तो वो चीज आपको फॉलो करनी है या फिर आपको बैलेंस रखना है दोनों चीजें. तो मतलब आई मीन अभी जो डोमेस्टिक नहीं आई मीन ग्रासरूट लेवल पे जो मैचेस होते हैं तो उसका कुछ व्यूअरशिप रहता है, आई मीन कुछ कहाँ देख सकते हैं वगैरह ऐसा कुछ है? होता है लाइक अगर ऑर्गेनाइजर करे तो होता है. सो जैसे अगर मैंने प्लेटफॉर्म्स है लाइक कुछ भी करो, लाइक बेसिक थिंग यूट्यूब लाइव करो, उसके लिए तो तुम्हें कुछ नहीं चाहिए. लेकिन वो लोग करते हैं वैसे करते हैं लाइक स्टेट टूर्नामेंट्स. बीन अ पार्ट ऑफ खेलो इंडिया जो होता है एंड मध्य प्रदेश का भी हुआ था, तो उसमें दे डू यूट्यूब स्ट्रीम्स, फिर कभी कभी डीडी स्पोर्ट्स पे भी आता है. हाँ नाइस, फिर वो अच्छा है. जैसे अभी लोकल टूर्नामेंट है, सो वो क्या करते हैं बेसिक यूट्यूब चैनल किसी का रहता है उसमें. सो अगर मान के चलो इफ यू हैव 2 से 3 कोर्ट है, अरेंजिंग 2-3 हैंडीकैम्स इज नॉट अ बिग टास्क. हैंडीकैम का खाली पिक्सल्स एडजस्ट करो और FPS एडजस्ट करो एंड
वायर कनेक्ट करके स्टार्ट स्ट्रीमिंग. सो इट्स एज सिंपल एज दैट. बस उसमें फिर थोड़ा ऑडियो का डिले होता है क्योंकि जब कोर्ट में खेल रहे हो लाइक 3-4 कोर्ट है साथ में, सो वो साउंड जो आ रहा है लाइक प्लेयर चिल्ला रहा है या फिर जो भी है, तो वो सराउंड हो जाता है, तो थोड़ा डिले आ जाता है, एको हो सकता है, डिले हो सकता है, या फिर अंपायर्स का कॉल्स जो है वो थोड़ा आपको समझ में ना आए वो टाइम पे. मतलब वो सब थोड़ी बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं. बट अगर अच्छे प्लेटफॉर्म पे देखा जाओ तो लाइक जो स्टेट टूर्नामेंट्स है उसमें, तो फिर वो टाइम पे आपको अच्छा क्वालिटी में स्ट्रीमिंग देखने मिलता है. वो भी यूट्यूब पे होता है. अदरवाइज अगर आपके सिंगल कोर्ट है तो आई वुड से इंस्टाग्राम लाइव करो, एक दो कोलैबोरेटर्स को ऐड करके, तो व्यूअरशिप मतलब फटाक से मिल जाएगी. लाइक समझ के लोग लाइक 1000 फॉलोअर्स है हमारे, मैं टूर्नामेंट कर रहा हूँ, सो मेरे 1000 फॉलोअर्स मैंने आप दोनों को ऐड किया स्ट्रीमिंग में, तो वो लोग भी सो इट्स 3000 पीपल. उनको नोटिफिकेशन चला गया ना विदाउट सब्सक्राइबिंग टू एनी चैनल. और जो भी छोटा सा चीज है लाइक बेल आइकन बिना दबाए 3000 लोगों को नोटिफाई हो गया. हाँ, फेक अकाउंट वगैरह दैट इज डिफरेंट पार्ट, बट कंसीडर अगर करो 500 भी रियल अकाउंट है, इट्स 1500 पीपल ऑडियंस गेटिंग नोटिफाइड एट अ सिंगल टाइम. सो ऐसा कोई स्ट्रीमिंग का कोई है नहीं. बट या अगर कोई स्ट्रीमिंग कर भी रहा है यूट्यूब पे, इट्स नाइस कि आपको आपका परफॉर्मेंस की क्लिप मिल जाती है ऑनलाइन. और एक ऐसा रहता है यार मैं यूट्यूब पे आ गया, लाइक ये लाइव चल रहा है, फैमिली में दिखाते हैं मेरा बच्चा खेल रहा है. हाँ, मेरा बच्चा वहाँ पे खेल रहा था, देखो कैसे कैसे समझा, वहाँ पे जाके कुछ किया उसने, हार गया. वही क्लिप उधर फेमस हो गई शॉर्ट्स में. मज़ा आ जाएगा. तो अबाउट इंजरी, तो आई मीन मोस्टली क्या कॉमन इंजरीज होती है बैडमिंटन में? पैर के ही होते रहेंगे या पैर के होते, हाथ के, एल्बो वगैरह, शोल्डर्स या फिर एल्बोज की इंजरीज मतलब बहुत कम एथलीट्स के होते हैं कंसिडर किया जाए तो एज कम्पेयर टू जो लेग इंजरी. सो ACL टीयर है जो बहुत कॉमन चीज़ है नी में. लाइक फॉर एथलीट्स की आई वुड से बेसिकली कॉमन चीज़ है. जो फुटबॉल खेलते दे वुड रिलेट कि ACL या फिर मेनिस्कस टीयर हुआ मतलब इट्स आइदर डन विथ योर करियर, या फिर अगर रिहैब अच्छा हुआ तो थोड़ा है तो ACL इज योर बेसिक एनिमी. मतलब अपोनेंट वो नहीं है, अपोनेंट ACL है. बट हाँ, अच्छा रिहैब कर रहे हो, अच्छी कंडीशनिंग कर रहे हो लाइक व्हाइल ट्रेनिंग, सो देयर इज नेवर अ सीन ऑफ इंजरी. लाइक होता है जैसे ओवर ट्रेन भी किया तो भी हो सकता है इंजरी. सो बट या यू हैव टू रिकवर फ्रॉम ACL और मेनिस्कस टीयर होते हैं. या फिर जो अपना पैर है, पैर के पीछे में कभी कभी एंकल में बहुत सारे इंजरीज होते हैं. एंकल ट्विस्ट बहुत सारे प्लेयर्स का होता है खेलते समय बिकॉज ऑफ अनइक्वल कोर्ट्स. कभी कभी मतलब हो जाता है कि एक कोर्ट का लेवल है और एक कोई कोना होता है उसमें थोड़ा सा कोर्ट ऊपर आ जाता है, फिर तो वो टाइम पे उधर इंजरी हो सकती है. नाइस. मतलब अभी बेल आइकन का बात कर रहे थे हम लोग, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो मतलब सिर्फ वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते. नॉन सब्सक्राइबर्स बहुत है. कैसे हम लोग को भी टेंशन होता पिछले है 2 वीडियो से बोल ही रहे, मतलब अभी बॉल भी है हाथ में और मेरा बैट की तरह ग्रिप. तो स्पर्श भी अभी थोड़ा वार्निंग देने वाला है. हाँ, आपको तो मालूम ही है मैं कैसा हूँ, मार भी सकता हूँ, तो नहीं मारूंगा नहीं. जोक सपोर्ट मतलब सच्ची में करो यार सब्सक्राइब, मतलब इट विल ऑब्वियसली मोटिवेट अस टू मेक सच मोर वीडियोस. वी आर ऑलरेडी ऑन 232 सब्सक्राइबर्स. हाँ, 232 153 कुछ तो है. 232 है ना? नहीं 155 मैंने सब्सक्राइब नहीं किया क्या? आप कर दो, आप आपके ऑडियंस को भी बोल दो करने के लिए. अगर आपके ऑडियंस ने कर दिया तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा. तो मुझे लगता है अभी एंड करना चाहिए. बॉल गिर गया. वेदांग यार, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू. मजा आया बात करके आज, एंड बहुत इंसाइटफुल बातें हुई, एंड वी गॉट टू नो अबाउट योर जर्नी इन बैडमिंटन एवरीथिंग. और जर्नी तो कुछ बोला ही नहीं मैंने. हाँ, मतलब बेसिकली जो तूने पहले का बोला था वो सब काफ़ी अच्छा लगा हमको. वेदांग आया हमारे कहने पे, हमारा दोस्त है वैसे, आना तो चाहिए था ही उसको, बट ठीक है. अरे कोई बात नहीं. लाइक आप मतलब जो भी हो, लाइक जो स्टार्टिंग कर रहे हो, लाइक डू दिस थिंग्स लाइक इंटरव्यूइंग एथलीट या फिर जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स है, इट्स नाइस कि अगर कोई मतलब चैनल स्टार्ट कर रहा है बेसिकली, तो उसको भी अलग से मतलब मिल जाता है कि भाई यार मैं यूट्यूब पे आ गया, ऐसा अगर है. जैसे आप, मैं बताऊंगा जाके घर पे सब लोगों को यार मैं यूट्यूब पे आने वाला हूँ. तो अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वेदांग के घर से हमें एक 15-20 सब्सक्राइबर तो मिल ही जाएंगे. मैं ही अकाउंट बना लेता हूँ. फिर तो मतलब अच्छी बात है कि अगर कोई अच्छा इनिशिएटिव कर रहा है, जैसे ये पॉडकास्ट है, या फिर कल को अगर
इफ़ यू स्टार्ट इन एकेडमी, और अगर कोई मुझे बुलाता है, लाइक मेरा दोस्त है या फिर कोई कॉलेज का दोस्त है, इंडस्ट्री से कोई दोस्त है, सो इट्स लाइक अ प्लेजर कि वहाँ जाकर देखे कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है। व्हेन हमारा जब आइडिया आया साथ में एक स्टार्टअप करने का या फिर एकेडमी स्टार्ट करनी है, तो एकदम से क्लिक हुआ एंड वी स्टार्टेड एग्जीक्यूटिंग। तो वो मतलब बहुत अच्छा लगा कि यार कोई तो मतलब मेरे लेवल पे है या फिर मेरे साथ सोचता है। और अभी भी जब मैं बताता हूँ, जैसे अभी मैं क्लास में या फिर मेरे जो कलीग्स हैं उनसे बताता हूँ कि मेरा एकेडमी है, वो लोग पूछते हैं कहाँ पे है, एग्जिस्ट कहाँ करती है। हमारे सब्सक्राइबर को भी बता दो कि कहाँ पे, तो वो लोग भी आ जाएंगे आपके यहाँ प्रैक्टिस मेरे एकेडमी का नाम है जस्टेक्स करके। सो वो रोहा में ही है अभी तक बेस वहाँ पे। हम लोग अभी स्टार्ट सोच रहे हैं कि मुंबई में कहीं पे करें। सो अभी फिलहाल एक बैडमिंटन एकेडमी स्टार्ट किया है, जो एक जैसे मैंने बोला कि ग्रास रूट लेवल पे जो मुझे नहीं मिला मैं उनको दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ अभी मतलब जितना मेरे पास है कमा लिया है। सो मेरे पास अभी 2-3 लोग हैं जो मुझे बहुत हेल्प करते हैं। इवन मेरा जो रोहा का जितने भी लोग हैं, मतलब आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माई ग्रुप एज वेल, कि वो लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, लाइक गेटिंग परमिशंस। क्योंकि एकेडमी एक जगह पे मैंने स्टार्ट की है, कल को जाके कोई भी मेरे को बंद करा सकता है, बट टू गेट परमिशंस है या फिर फंड रेजिंग है, उसके लिए मुझे बहुत हेल्प मिला। मेरे जो सुबह वाले जो अंकल ग्रुप आता था ना खेलने के लिए, सो उनकी तरफ से अभी भी मैं उनके साथ खेलता हूँ। कल को अगर उनका कोई बच्चा है और आके बोलता है मुझे सीखना है, मैं उन्हें चार्ज नहीं करता। और मेरे पास ऐसे बच्चे हैं, लाइक मेरी लास्ट ईयर की जो बैच थी उसमें मेरे 8 बच्चे थे जिनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता था, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे यार भरने के लिए। मतलब मैं क्या मुंह से मतलब उनसे 500 रुपए मांगू, दे आर हार्डली सर्वाइविंग। मतलब वो घर में मतलब है, पैसे नहीं है ऐसी वाली बात नहीं, बट एक स्पोर्ट का एक एक्सपेंस अलग होता है, तो वो ऐड हो सकता है अलग अलग जाके। तो मैं वो 8-9 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता था। और मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे पास बहुत अच्छा स्टाफ था वो टाइम पे, और अभी भी है। लाइक जो मुझे असिस्ट करते हैं, राहुल करके जो है वो है, या फिर अमोल करके एक है जो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं ना, सब बेटे के समान मतलब सब लोग रखते हैं, या फिर भाई के समान। एक योगेश करके एक है। सो मतलब वो मतलब मेरा टूर्नामेंट करना है तो मेरा ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स और जो भी टी शर्ट्स वगैरह तो मैं वो योगेश से करवाता हूँ। मतलब वो मुझे एक रात पहले बोलूंगा, नेक्स्ट डे वो करके देगा। सो वो एक ट्रस्ट बिल्ड किया है। या फिर मिलन अंकल करके एक है जो मतलब वो खेलते नहीं है अभी, बट ही यूज्ड टू प्ले। वो आके प्रेजेंस देना वो टाइम पे, इवन माय डैड एज वेल। वो कभी मेरा गेम देखने तो नहीं आया, बट यस मेरे एब्सेंस में मेरे एकेडमी में जाके चेक करना, या फिर अभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी था, लाइक जो लास्ट टूर्नामेंट था, आई वाज ऑन अ प्रोजेक्ट बाहर, तो मैं नहीं जा पाया। तो जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने मेरे पापा को इनवाइट किया, और पापा गए। दैट वाज अ बिग थिंग कि मेरे यहाँ से कोई रिप्रेजेंटेटिव था कि मुझे कोई रिप्रेजेंट करे वहाँ पे। सो वहाँ पे जाके उन्होंने सुना कि मैं क्या कर रहा हूँ वहाँ पे। सो एक मुझे भी अच्छा फीलिंग था वो टाइम पे कि मैं यार पापा के सामने से तारीफ होना इज अ बिग थिंग। फिर मेरी मम्मी भी मतलब स्कूल में तो बहुत सारे लोग उसको पहचानते हैं, तो उन्हें अभी अप्रोच करते कि अभी लाइक मराठी में मतलब दादा कभी येणार आता, लाइक दे वांट टू लर्न फ्रॉम मी। मैं जाता हूँ तो बहुत सारे बच्चे कि मैं कोई ये सीखा, मैं कोई ये सीखा। मतलब वो अच्छा लगता है यार, हम एक हैप्पी स्पेस में बिल्ड हो रहे हैं। सो अगर कल को जाके मैं बोलता हूँ कि यार स्पर्श है, कैवल्य है, यार तुम लोग के साथ पॉडकास्ट करना है मुझे, सो मतलब तो इट विल ऑलवेज बी अ प्लेजर कि मैं आके यार एक टॉपिक है मेरे पास, कुछ करते हैं। सो अगर कोई ऐसा अप्रोच करे, जैसे मेरे को स्पर्श का बहुत पहले मैसेज आया कि ऐसे ऐसे करना है, लाइक कि हाँ करते हैं। लाइक मैं सोचा भी नहीं, मैंने सीधा बोल दिया करते हैं। बिकॉज एक एथलीट की या फिर कोई किसी की जर्नी सामने लाना इज नॉट अ स्मॉल थिंग। मतलब कल को अगर हम दोनों होते स्पर्श की जर्नी में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बाहर, सो इट्स अ बिग थिंग कि यार वो आके कुछ बोल रहा है, ही इज गेटिंग अ प्लेटफॉर्म टू से। अभी ये मुझे कॉलेज में पूछ सकते थे या फिर कोई अलग प्लेटफॉर्म पे मुझे बहुत लोग पूछते हैं, बट मैं इतना डिटेल में नहीं बोल पाऊंगा वहाँ पे। बट कैमरा के सामने आके एक चैनल पे बोलना, इट्स गट्स लगते हैं उसके लिए, और जो होस्ट कर रहा है उसको भी गट्स लगते हैं। जैसे कोई फंबल करता है कभी कभी बट यार अच्छा है, मतलब क्या ही बोलो यार। मतलब लास्ट टाइम हम लोग मिले थे आई गेस बहुत पहले गोवा के टाइम पे, उसके बाद अभी मिल रहे। सो इट वाज नाइस कि अगर भाई रिकनेक्ट भी करने मिला। बीच में 1-2 बार हम मिस किए एक दूसरे, मतलब लाइक कॉल्स पे ही बातें हुई। हम तो मिलते रहते हैं वैसे। क्या है, अभी विला जाने का प्लान कर लेंगे तो आ जाएगा फिर से।
नहीं बट अच्छा है ना, लाइक कुछ कंटेंट क्रिएट करे, जैसे पर्श है, मैं उसको बोलता हूँ कुछ रील्स कनेक्ट कर या फिर कुछ, वो डालता नहीं है। नहीं मैं रील्स बनाता हूँ है, किया हूँ पोस्ट तो अच्छा एक्सेप्ट करोगे? नहीं बट अच्छा है लाइक गाइस, मतलब आई अप्रिशिएट द योर थर्ड पार्टनर एज वेल, जो भी है। अभी मतलब मैं उससे इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है मेरा, बट इट्स नाइस कि यार तुम लोग ने ये सब अरेंज किया है, एंड आई होप कि आप को जाके मेरे अलावा कोई और सेलिब्रिटी भी आ जाए। अभी वेदांत कुलकर्णी है, नेक्स्ट लक्ष्य सेन भी आ सकते, तो अगर आप सपोर्ट करोगे तो। नहीं, थैंक्स अरे, फॉर द काइंड बिल्कुल। वर्ड्स, मतलब इतना बोला अच्छा लगा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एकेडमी। मैं तो बोलता हूँ अगर आपको Definitely कोई अच्छा और है। चाहिए लाइक ऑन द हाँ। प्लेटफॉर्म टू बी हियर, आपको कुछ उससे और एक्सपेक्टेशन रखनी है, तो आई वुड हेल्प यू कनेक्ट विद देम, मतलब जो भी है आप उनसे पूछो, मेरे कोच है उनसे आके बात करो, या फिर मैं उनको यहाँ पे बोलता हूँ लाइक ऐसा ऐसा है, मतलब नो वन, मतलब जो मेरे कॉन्टैक्ट्स में कि वो बहुत सारे लोग ऐसे कि वो आपको जाके हेल्प करेंगे, एंड आई वुड लव टू सी देम हियर एज वेल मेरे बाद, या फिर मैं यहाँ पे वापस आ जाऊँ जैसे कपिल शर्मा शो में होता है ना रेगुलर वाला ऐसा। डेफिनेटली मीन्स अ लॉट, थैंक यू। सर जी तो एंड करते हैं। यस सर, मिलेंगे करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, मिलते हैं। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन वेदांत फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर थॉट्स एंड इनसाइट्स, सो धन्यवाद। एंड अभी एंड करते हैं। थैंक्स वेदांत फॉर कमिंग। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, बाय बाय बाय।